Good morning, students. Myself, Sheetal Khandelwal, your 11th lecturer. Today we start with the concept of business. Before that, I would like to congratulate all of you for your grand success in 10th standard. As results come, you succeed in 10th standard and appear in the 11th standard. So, first of all, a grand congratulations, a hearty congratulations to you guys for your grand success. Today we see the first subject of your 11th commerce, that is business. What is business? बिजनेस क्या होता है? नॉर्मली स्पीकिंग आप लोग बोलते हो इसका वो बिजनेस है, इसका वो बिजनेस है, लेकिन वो करता क्या है? Where a person combine some activities or do some activities for his earning, for his survival, that is considered as business. जहाँ पे कुछ लोग जमा होते हैं या एक इंसान सेल और परचेज की एक्टिविटीज करता है काय के लिए, विद द इंटेंशन, उसका एम क्या रहता है, कुछ ना कुछ पैसा कमाना, उसे हम बोल रहे हैं बिजनेस. ठीक है ना? सॉरी, फर्स्ट बिफोर गोइंग टू सब्जेक्ट यू गाइज हैव टू परचेज बुक्स ऑफ बिजनेस स्टडीज. You have to purchase these books of author B.K. Kumawat. Wait a minute. This is the book of B.K. Kumawat. You have to purchase this book from the market. This book is easily available in the market, in our local market as well as Indore Ujjain market. You have to purchase this book. In this book, your first chapter is nature and purpose of business. Purpose of business. Nature and purpose of business. In that, the first thing is, first point first, human activities. Human activities is what? The activities undertaken by human being. The activities undertaken by human being to achieve a specific goal for their or to earn something for their survival, to increase their wealth. अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं काय के लिए, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए, वेल्थ कमाने के लिए, that is considered as human activities. Human activities को क्या बोला गया है? The activities undertaken by human being for accomplish their goal of earning some wealth and for earning some reward out of it. कोई भी अगर पर्सन कुछ वेल्थ, कुछ रिवार्ड, कुछ रिटर्न अर्न कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ देयर सर्वाइवल, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए, उस एक्टिविटीज को हम लोग बोल रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज. ये ह्यूमन एक्टिविटीज दो टाइप की होती है. इन दैट फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इन दैट फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. The activities which is done with the intention to earn money and money and money, to increase wealth. जो एक्टिविटी पैसा कमाने के इंटेंशन से काम की जा रही है, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी असेट, हमारी संपत्ति या हमारा लैंड इंक्रीज करने के इंटेंशन से की जा रही है, उसको बोल रहे हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डन बाय ह्यूमन बीइंग, विच आर डन बाय द पीपल to increase their wealth and welfare, is known as
economic activities. Some of the Indian authors, some of the management thinkers give their own definition in this regard. In that, the first author is our Marshall. What Marshall says? Marshall says economic activities are those activities which increase the material welfare of man and which are used for increasing wealth and welfare. Again I repeat, economic activities are those activities which increase the material welfare. The thing material welfare. Material welfare क्या होता है? Material welfare means in the form of physical welfare, in the form of material goods. अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहा है उससे उसको मटेरियल के फॉर्म में, विजिबल फॉर्म में कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, पैसा मिल रहा है या गुड्स वो ला रहा है, दैट इज मटेरियल वेलफेयर. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज इन दैट those activities which increase the material welfare. एक अगर मजदूर दिन भर काम कर रहा है, शाम में 300 रुपए उसके हाथ में आ रहे हैं, वो 300 रुपए से क्या कर रहा है, वो घर के ग्रोसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये परचेज कर रहा है, तो उसकी क्या हो रही है, मटेरियल वेलफेयर इंक्रीज हो रही है. तो एक्टिविटी कौन सी जिससे मटेरियल वेलफेयर इंक्रीज हो रही है? इंक्रीज द मटेरियल वेलफेयर ऑफ मैन एंड विच लीड्स और यूज फॉर इंक्रीजिंग द वेल्थ एंड वेलफेयर. वो काय के लिए यूज हो रहा है? ये मटेरियल वेलफेयर जो 300 रुपये उसने कमाए, काय के लिए यूज हो रहे हैं? उसकी वेल्थ और वेलफेयर इंप्रूव करने के लिए. ये एक मजदूर 300 कमा रहा है, एक बिजनेसमैन 3000 कमा रहा है, एक फैक्ट्री का ओनर 3 लाख रुपए पर डे कमा रहा है, एक स्कूल ओनर कुछ अमाउंट कमा रहा है, तो दैट इज द मटेरियल वेलफेयर. उससे क्या हो रहा है? उसकी वेल्थ और उसका वेलफेयर दोनों इंक्रीज हो रहा है. तो मार्शल क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज बाय विच material welfare of man, material welfare of people goes on increasing. material welfare people की increase हो रही है, उससे उनको benefit क्या मिल रहा है? उनका wealth और welfare दोनों improve हो रहा है, बढ़ रहा है. सेकंड डेफिनेशन दी है पिंगो की. In that they says economic activities are those social activities which are done for the welfare of man and which can be measured in term of money. यहाँ मटेरियल वेलफेयर बोला एक्टिविटीज को, तो इन्होंने इंसानों की एक्टिविटी, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी को क्या नाम दे दिया है? सोशल एक्टिविटीज. सोशल एक्टिविटीज ऑफ मैन विच इंक्रीज द वेलफेयर. वो क्या इंक्रीज कर रहा है? वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी. वो ऑलवेज मेजर्ड किस टर्म में हो रही है? मनी के टर्म में. सोशल एक्टिविटी ऐसी की जा रही है जो मनी के टर्म में मेजर हो रही है. मैंने आपको जस्ट बताया, एक जो वर्कर है वो 300 रुपीज पर डे कमा रहा है इन टर्म ऑफ मनी. मेजर्ड कैसे हो रहा है? इन टर्म ऑफ मनी. एक फैक्ट्री ओनर है वो 3 लाख रुपए कमा रहा है. एक होटल इंडस्ट्री वाला है वो 3000 रुपए पर डे कमा रहा है. एक मैनेजर है वो 30,000 रुपए महीना कमा रहा है. तो उनका जो वर्क है, उनका जो एक्टिविटी है वो मेजर्ड हो रही है इन टर्म ऑफ मनी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिंपल वर्ड्स में क्या होगी? एक्टिविटीज विच आर डन बाय द पर्सन और फॉर द इंटेंशन टू वर्क इन सच अ वे. एक एक्टिविटीज या कार्य इसलिए कर रहा है वो कि वो पैसा कमाए, अर्न करे इन टर्म ऑफ मनी इटसेल्फ, वेल्थ और वेलफेयर इंक्रीज करने की. नाउ द सेकंड हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और वी कैन से दैट फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज.
characteristics. In that, first, wealth oriented. Second, legal activity. फर्स्ट एक्टिविटी इज वेल्थ ओरिएंटेड। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो वेल्थ ओरिएंटेड है। कैसे न कैसे करके अपनी वेल्थ प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, ओवरऑल उसका टारगेट, ओवरऑल उसका एम क्या रहता है? वेल्थ प्रॉपर्टी कैन बी इंक्रीज। लीगल एक्टिविटीज, कोई भी जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं, दैट मस्ट बी लीगल इन नेचर। इलीगल एक्टिविटीज, माल प्रैक्टिसेस, स्मगलिंग या अदर एक्टिविटीज विच इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो सोसाइटी के पीपल को नुकसान दे सकती है, ऐसी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ रही है क्या? नहीं, वो इलीगल एक्टिविटी में आ रही है। तो यहाँ पे वेल्थ ओरिएंटेड एक्टिविटी है। सेकंड, लीगल एक्टिविटी है जो गवर्नमेंट, हमारा लॉ, हमारा कोर्ट जिसे अलाउ कर रहा है। फॉर दैट पर्पज हम लोग देखते हैं कोई भी बिजनेस चालू करने के पहले हम लोग को एक लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता है और आफ्टर ऑब्टेनिंग दैट लाइसेंस हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। थर्ड है एक्टिविटीज ऑफ एवरेज मैन। अगर देखो इसमें जितने भी पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं, एवरेज मैन, एवरेज मैन मीन्स एक पर्सन ऐसा जो लीगल फिजिकली फिट हो। कोई भी लुएंसिक पर्सन है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो फिजिकली फिट नहीं है, यानी मेंटली अपसेट है, लुएंसिक यानी जो अपसेट माइंडेड है, ऐसे पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते क्या? नहीं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर्सन करने के लिए एक कॉमन मैन, एक एवरेज मैन या एक हेल्दी पर्सन होना जरूरी है। लास्ट, मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। इसके लिए फोर्थ पॉइंट क्या दिया है? रॉड ऑफ मनी। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैंने पहले आपको बताया मेजर करना है, तो मेजर करना इन टर्म ऑफ मनी, पैसे के कीमत में उसको मेजर किया जाए, वैल्यूएशन किया जा रहा है इन द टर्म ऑफ मनी। इन आवर एग्जांपल अगेन आई रिपीट, 300 फॉर अ वर्कर, 3000 फॉर अ शॉपकीपर, 30,000 फॉर अ मैनेजर एंड 3 लाख फॉर अ फैक्ट्री ओनर। तो इन लोगों के लिए रॉड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया? इन टर्म ऑफ मनी। सो today is our first session. In our first session, I summarize with the four characteristics of economic activity and the concept of economic activity. As we join together, students become more active and they start going to study. Our syllabus is carry on, but my request you all guys, please purchase your books. If you purchase your books, then we can go for our studies in better and better way. Thank you.